Good morning, everyone. On behalf of MTP's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Department of Mathematics and IQAC organized one-day webinar on the occasion of World Indigenous Day. I heartily welcome to all dignitaries and all dear participants. I, Mommi Mubashira, Head of the Department of Mathematics, as a post of HOD, I especially thankful to our principal, S.C. Hale sir, Dean of Commerce, Dr. Arif Anjum, Vice Principal, Dr. Shakib Ahmed, and IQAC Coordinator, Dr. Rizwana Haqqani. They encouraged us to organize this webinar. It's my great pleasure to introduce today's webinar as it beneficial for all participants. On 23rd December 1994, the United National General Assembly decided in its resolution 49 by 214 that International Day of World Indigenous People shall be observed on 9 August every year. The date the date of the first meeting in 1982 of the UN Working Group on Indigenous Population. The aims and objectives of the World Indigenous Day are to rise, practice, and protect the rights of world indigenous population. This event also recognizes the achievement and contribution that indigenous people make to improve world issues such as environmental protection. It also establishes a universal framework of minimum standards for the survival, dignity, and well-being of indigenous people of the world. Now, I would like to invite Honorable Vice Principal Dr. Shakib Ahmed for welcome speech. Over to Dr. Shakib Ahmed. Good morning, everybody. On behalf of MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, I, Dr. Shakib Ahmed, Vice Principal of the college, welcome all the participants to today's Indigenous World Population Day. Uh, I hope that today's program will achieve the objectives of this day, and I heartily welcome our chief guest of the program, keynote speaker of the program, Dr. Naseem Ansari ma'am, and hope that the objective will achieve. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind motivation. Now, I request Professor Fozia ma'am to introduce our today's speaker, Dr. Ansari Naseem. Over to Fozia ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible? Good morning to all. I am Fazia Parveen, head of the Department of Chemistry. It's my honor to introduce today's speaker, Dr. Ansari Naseem. Dr. Ansari Naseem is integrated from Bioeducation, JT Girls College, and Edison Energy College, Malegaon, Kenya. She is also awarded her PhD in particular impact of politics on powerful industry in Malegaon from Marathwada University, Ahmedabad. He also published two books of SYBA class, S1 and G1. He is one of the best teachers in politics and has 21 years job experience in University College. Now currently she is working as assistant professor in SPS Mahila Mahavidyalaya. I would like to say a few lines for Dr. Naseem ma'am. She मैडम works आवाज in कट रही है. फौजिया मैम आवाज नहीं आ रही है.
हाँ मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। I am Fauziya Parveen, head of the Department of Chemistry. It's my honor to introduce today's speaker, Dr. Naseem ma'am. Dr. Naseem ma'am completed her BA degree from GAT Girls College and MA from MSG College, Malegaon Camp. She also awarded her PhD degree on topic of impact of politics on power loom industry in Malegaon from Marathwada University, Aurangabad. She also published two books of SYBA class, X1 and G1. She is one of the best teacher in politics and has 21 years job experience in our city college. Currently, she is working as an assistant professor in SPH Mahila Mahavidyalay. I would like to say few lines for Dr. Naseem ma'am. कोई वर्ग हो कोई अंजुमन, ये शियार अपना कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया. Thank you, ma'am. Over to Mubashira, ma'am. Thank you, Fauziya ma'am, for such a beautiful introduction of it. Now, it's a time to move toward our main session. I feel proud to invite our keynote speaker of the webinar, Dr. Ansari Naseem. I request Dr. Ansari Naseem ma'am to deliver the lecture. Over to Naseem ma'am. Okay. Now, Honorable Principal S.T. Hale sir, Vice Principal Dr. Shakib Ahmad, and NAC Coordinator Dr. Arjun sir, AQSC Coordinator Professor Rizwana Hamdani ma'am, and my colleagues, teaching and non-teaching staff, and all participants. Very nice good morning. Now, first of all, I would like very thankful to of all you. I am invited the honor of these days. Now today how the celebrate endogenous the native days for the international day. Now this day is the very most important for the depressed caste and the depressed culture and the depressed community among the world. But now today how the very happiness and the holidays in their respect and the honor of the depressed and downtrodden community among the world. Now endogenous means now the having originated in and being produced or growing or living naturally in a particular origin or environmental disease endogenous to the tropics. Endogenous definition originated in and characteristic of the particular region or country, native often followed by the plant indigenous. Now the indigenous people such as having social, culture and economic tradition different from other section of the national community, but they're identifying themselves with their on on the different caste and the different language and the different identity etc. देखिए अगर देखा जाए तो in the world the first started their Greek America in the indigenous native people. यानी अगर इस पीपल की शनाख्त हुई, इस पीपल के तई कोई बेदारी पैदा की गई, कोई जागृति पैदा की गई, तो वो हमारे वर्ल्ड में जो है सबसे पहले अमेरिका में जो है इसकी शुरुआत हुई. बट नाउ दे आर टू स्टार्टेड दे आर द tribals most important they are suffered of the natural calamities and the natural environment. खास तौर से ये लोग उसमें शामिल होते हैं जो कुदरती आफात का शिकार होते हैं. नाउ द फॉर एग्जांपल इन इंडिया नाउ द आसाम, बिहार, ओरिया, जैसे हमारे मुल्क में देश में देखेंगे कि आसाम, ओरिया, बिहार, इस देश में हर साल बारिश के मौसम में जो है सैलाब आता है. अब ये जो इलाका है वो खास तौर से हिमालय के दामन में वाक़ है. हिमालय के दामन में वाक़ है तो हर साल दरियाए गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी बहकर इन इलाकों में आ जाता है और यहाँ की हर साल खेती और घर बार जो है वो बह जाता है. तो इस तरीके से ये लोग जो है नेचुरल क्लाइमेटीज़ का शिकार होते हैं. और ऐसे बहुत से इलाके हैं, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में कहेंगे हम आदिवासी इलाका
जो है आदिवासी पीपल्स, आदिवासी इज द डाउन ट्रोडन एंड द डिप्रेस्ड कंडीशन एंड डिप्रेस्ड कास्ट इन दिस कंट्री। खासतौर से हमारे देश में देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे आदिवासी कौम है, आदिवासी कास्ट से आदिवासी कम्युनिटी के नाम पे जाने जाते हैं, बट नाउ दे आर हैड लिव्ड इन देयर डिफरेंट प्लेस एंड द डिफरेंस इन्वायरमेंट। कोई पहाड़ी के दामन में रहता है तो कोई समुंदर के किनारे रहता है, कोई जो है बहुत ही मतलब पगडंडी वाले रास्तों पे रहता है। अब नाउ दे शुड डोंट नो द सिटी लाइफ, उनको ये नहीं पता होता है कि शहरी जिंदगी क्या चीज है। खास तौर से ये लोग इस तरीके से डिप्रेस्ड एंड कंडीशन में ही लोग रहते हैं, जिसको हम आमतौर पर कबायली भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे एक बंजारा कौम है, हमारे यहाँ पर जैसे एक खाना बदोश है, तो इनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। क्या आप बंजारा को देखेंगे कल्चरली यानी संस्कृति एतबार से बिल्कुल भी हमसे डिफरेंट होते हैं। उनका रख रखाव, उनका पहनाव, एक उनकी संस्कृति, उनका तहजीब। अब संस्कृति एक पार्ट ऑफ द लाइफ, यानी उनके जिंदगी गुजारने के जो तौर तरीके होते हैं, उनके जिंदगी गुजारने के जो अंदाज होते हैं वो हमसे डिफरेंट होते हैं। कल्चरी तौर से आप देखेंगे, संस्कृति तौर से आप देखेंगे, तहजीब के एतबार से देखेंगे तो हमारे यहाँ उनके दिखने दिखाने में, उनका चेहरा, कपड़े पहनने अंदाज भी अलग होते हैं, उनके जेवर पहनने के हैं। तो ये क्या होता है, ये लोग जो शामिल होते हैं इंडोजेनस नेटिव पीपल, बट नाउ देयर आर to maintenance of them self identity by the name of culture, by the name of language, by the name of country, by the name of original place। खासतौर से अपनी आइडेंटिटी ही ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन बाज मर्तबा ऐसा भी होता है कि कई लोग मतलब कई कौम ऐसे भी है कि दुनिया से उनका खात्मा हो गया है, लेकिन आज तक उनको आइडेंटिटी नहीं मिल पाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आसाम में देखेंगे, आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो नवार लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो देखिए ये लोग नवार लैंग्वेज के एतबार से इंडोजेनस नेटिव पीपल है। अब नवार लैंग्वेज जो बोलते हैं तो आसामी लोग का कहना ऐसा है कि ये लोग बांग्लादेश के हैं। तो इस तरीके से वहाँ कंटिन्यू जो है मुसलसल जो ये तहरीक चलते रहती है कि नवार लैंग्वेज बोलने वाले आसामी नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश के लोग हैं। तो अब जब ये बांग्लादेश जाते हैं तो आज तक भी वो लोग एक खैमे में ही रहते हैं। उनको ना तो रहने के लिए उनका घर होता है, ना तो उनको आधार कार्ड की सहूलत होती है, ना तो उनको राशन कार्ड की सहूलत होती है, और ना तो उनकी कोई वोटर आईडी होती है। यानी उनकी जो शहरी ज़िंदगी की सिटीजनशिप होना चाहिए उन्हें कभी भी मुयस्सर नहीं हो पाई है। आज भी आप देखेंगे कि वहाँ 10-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जहाँ उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर हमको 9 ID दिया गया है, हमारा आधार कार्ड है, हमारे जो है राशन कार्ड है, हमारा लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, इस तरीके से हमारे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है। तो ये ऐसे बहुत से हमारे ID जो है उनको आज तक ये प्रूफ नहीं मिला है। उनको ये भी नहीं पता है कि हमारी आइडेंटिटी ऑफ द मैन यानी हमारी शहरी ज़िंदगी की पहचान क्या है। हम आसाम के रहने वाले हैं कि हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं। जब आसाम में जाते हैं तो आसाम के लोग उनको मार भगाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश के लोग उनको मार भगाते हैं। तो इस तरीके से अब जब आप देखेंगे, देखिए मैं एक एग्जांपल मेरी खुद की देती हूँ, जीती जागती एग्जांपल, कि 2010 में मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो हरसुल में हुआ था। हरसुल जो है नासिक से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखेंगे कि नासिक जो है कितना डेवलपिंग सिटी है, अब उसके बाद 35 किलोमीटर पर हरसुल वाक़ है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के लोगों को देखी तो हरसुल जो है वो पूरा पहाड़ के दामन में वाक़ है। वहाँ का जो कॉलेज है वो भी पहाड़ के दामन में है। जब मैं वहाँ जाती थी तो सुबह जो है मेरे को बरामदे में सांप और बिच्छू चलते हुए दिखते थे। अब जरा सा बताइए कि हम शहर में तो बहुत से कॉकरोच वगैरह देखने में कम मिलते हैं, हमको हमारे घरों में चिड़िया देखने को कम मिलती है, लेकिन जब मैं वहाँ कॉलेज में जाती थी तो मुझको सुबह सवेरे सांप और बिच्छू का सामना करना पड़ता था। ये
तो एक अलग बात हुई, लेकिन जो इंडिजिनस पीपल की वहां की बात की तो वहां के लोग जो है आदिवासी लोग हैं, कबायली लोग, तो उनके चेहरे बनावट भी अलग थी। मैं ऐसा लगता था मेरे को कोई मैं एक आत्मा के शहर में आ गई हूँ जहाँ भूत प्रेत लोगों का गांव है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन फिर मैं वहां पे कुछ दिन रही तो मुझको एक आदत सी पड़ने लगी। उनकी लैंग्वेज ही अलग थी, जैसे मराठी लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज भी उनकी अलग थी, उनका चेहरे मोहरों की बनावट भी अलग थी। दरअसल कि उनका हर एक अंदाज जो था वो अलग था, रहने सहने खाने पीने का। अब अभी मैं आपको बताऊं कि वहां पे हिंदू मुस्लिम में फर्क करना भी मुश्किल था। यानी मैं वहां 2 साल रही तो 2 साल रहने के बाद भी मैं क्लास में जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनको मैं नहीं पहचान पाई। अब लास्ट में मैंने जब सुपरविजन किया, एग्जाम का मौका था, मैंने उनकी रिसिप्ट चेक की तो उस रिसिप्ट में जब मैंने नाम पढ़ा, हिना कौसर है, रेशमा है, सबा है, तो फिर मुझे लगा कि ये मुस्लिम है। तो कहने का मतलब वहाँ मुस्लिम लोग भी टीका लगाते हैं, उनका भी रहने सहने का अंदाज डिफरेंस हुआ है। जिस तरीके से वहाँ के लोग कबायली लोग रहते हैं उसी अंदाज मुस्लिम लोग और हिंदू लोग हर कम्युनिटी के, तो ये एक अलग जो पीपल थे, इंडोजिनस नेटिव पीपल। अब वो अपनी पहचान बनाने में, यानी नासिक आकर कभी जो है नासिक की जिंदगी या नासिक के शहर की जिंदगी को उन्होंने अपनाने की कोशिश नहीं की। तो इस तरीके से आइडेंटिटी बनाना, एक आइडेंटिटी को मेंटेन करना, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उनके अंदर एक बेदारी पैदा की जाए कि माई सेल्फ रेस्पेक्ट, कि हमारी खुद की पहचान क्या, हमारा खुद का रेस्पेक्ट क्या है। अब अगर जब उनकी खुद की पहचान होगी, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, तो उसी वक्त जो है उनको ये तमाम बातों से आशनाई होगी कि हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी जात जमात क्या है, हमारा धर्म क्या है। लेकिन तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने के तय जो है इसमें जो है बहुत सारे मतलब उन्होंने काम करना शुरू किए। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले इन बैकवर्ड क्लास लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंट्रोड्यूस ऑफ द हायर एजुकेशन, यानी सबसे पहले उन्होंने जो है इनके एजुकेशन पर जोर देना शुरू किया। एजुकेशन के बाद जो है बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बैंक को उन्होंने कायम करना शुरू किया, ताकि इस कोऑपरेटिव बैंक के ज़रिए जो है उनके फाइनेंशियल कंडीशन ग्रोथ हो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और ये तमाम जो है इंडोजिनस पीपल जो है हो सके, ये मेन मकसद है। अच्छा देखिए, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में हम जो एमजी विद्या मंदिर संस्था में काम करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे आदिवासी सेवा समिति का पाठशाला कायम किया है, आदिवासी सेवा समिति यतीम का बच्चों का स्कूल कायम किया है, आदिवासी सेवा समिति वुमेन्स के लिए जो उन्होंने कायम किया है। तो इन सब तरीके से जो है इनके अंदर एक अवेयरनेस लाना, उनको जो है फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का जो है खात्मा करना, और ख़ास तौर से इनको सोसाइटी में इनकी पहचान दिलाना, समाज में इनकी पहचान दिलाना, और फिर उसके बाद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। तो ये तमाम काम है जो है बहुत तेज़ी से जो है मतलब शुरुआत की गई, कोऑपरेटिव बैंक को कायम करके, आदिवासी सेवा समिति को कायम करके, इनके एजुकेशन के लिए जो है बहुत सारे, अभी जैसे हमारे यहाँ अपूर्व भाव हीरो ने दत्ता की योजना कायम किया है, ये भी उसी की लिंक हुआ है कि ऐसे जो पिछड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आदिवासी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको अडॉप्ट करना और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ताकि ये समाज में, सोसाइटी में एक मकाम हासिल कर सके। तो ये सबसे अहम होता है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ट्राइबल, है ये क्या चीज है? आफत का शिकार होते हैं। अब कुदरती आफत का शिकार होते हैं, जैसे मैंने बताई अभी कि आसाम हर घर तो वहाँ गरज की उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, पंचायत समिति
उनके फाइनेंशियली कंडीशन को डेवलप करने की कोशिश करती है। यानी जो भी हमको टैक्सेस, जो भी चार्जेस हमारे तमाम चीजें उनको, तो ये एक चीज है। आप उसके अलावा जो है खास तौर से खाना बदोश है आदिवासी के वो लोग जो दिखने दिखाने में अपनी एक शनाख्त तो रखते हैं। तो सबसे पहले इनकी शुरुआत जो है अमेरिका से ही हुई, और ऐसे लोग जो संस्कृति एतबार से, जबान के एतबार से, पहनने ओढ़ने के एतबार से वो अपनी अलग शनाख्त तो रखते हैं, मगर इनको आम शहरियों की तरह एक दर्जा नहीं मिलता है। और इनको जो है लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी देने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि ये लोग की भी पहचान जो है एक आम शहरियों की तरह हो, और बाय द गवर्नमेंट प्रोसेस इनकी एक आइडेंटिटी हो, इनकी एक पहचान हो। और ताकि हालांकि देखा जाए तो आजकल इसके कहीं बहुत ज़्यादा बेदारी पैदा हुई है प्रदेश में, जो कोई ना कोई कानून मुरतब करता है। हमारे यहाँ खास तौर से देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ डॉक्टर बाबा साहब Ambedkar, the first man started their movement against of the downtrodden and the classness. But now this movement started from the Nasik कालिका माता मंदिर। उन्होंने सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो है डाउन ट्रोडन्स के खिलाफ जो है तहरीक चलाई, और इसके अलावा जो है उन्होंने जब हमारा आहीन, हमारा दस्तूर लिखा तो रोड दैट आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासनेस। उन्होंने उसमें एक फीचर्स लिखा, स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासनेस। और आज जब आप देखेंगे कि उनको जो है 30% रिजर्वेशन किया जाए हर सेक्शन में, और इस तरीके से खास तौर से वुमेन्स भी जो है उनको जो है उनका दर्जा लिए। नाउ द स्पेशल प्रोविजन फॉर द is to give the support to maintenance of the justice, equality, liberty, and to maintenance of the equality among the society in the field of the socio-political and economic। और आज देखा जाए तो हर जगह जो है आदिवासी सेवा समिति कायम की गई है, ताकि अपने पिछड़े हुए लोगों की तरक्की हो, और इनके लिए जो है एजुकेशन में भी जो है रिजर्वेशन सीट फिक्स की गई है, और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक कायम किए गए हैं ताकि इन लोगों के फाइनेंशियली ग्रोथ हो। अब देखिए, किसी भी कौम की तश्कील ना हो, किसी भी समाज की तारीफ ना हो, उस मुल्क के नौजवान और उस मुल्क के तो होती है। अब हैं ना एजुकेशन होता है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत से छोटे बच्चे हैं जो कई किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं, और फिर नदी का तो वो इन तमाम बातों को दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारी डिमांड नाफिज करती है, ताकि इनको इनके पिछड़े हुए समाज से जो है ऊपर लाया जा सके। इनके पिछड़े हुए मतलब ख्यालात से जो है वो निकाल के उनको एक शहरी ज़िंदगी अता की जाए, उनको एक शहरी ज़िंदगी दी जाए, ताकि ये भी जो है हम आम शहरियों की तरह अपनी एक पहचान बना कर जिए। और ख़ास तौर से देखेंगे इसका जो मेन कंसेप्ट था, तो इन द वर्ल्ड देन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू राइज ऑफ द कॉलोनियल। देखिए, पहली जंग अजीम के बाद जो है दुनिया दो ग्रुप में तकसीम हुई, बेसिकली आइडियोलॉजिकली। द फर्स्ट ग्रुप लेड बाय द अमेरिका एंड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड द सेकंड वर्ल्ड द रशिया टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेसिकली आइडियोलॉजिकली कम्युनिज्म। But now the very differentiation, the ideologies and establishment of the government and the democracy is to give the support of liberty among the। तो इस तरीके से जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और उस वक्त जो है पहली जंग अजीम के बाद बहुत से जो है यूरोपियन कंट्री जो है ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपनी चुनाव आबादियात को कायम कर रखा था और अपने अंडर कंट्रोल में रखा था। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रीटी को कायम किया और यूनाइटेड नेशन का
Now, United Nations is the first international organization for the establishment and maintenance of the mercy, pity, love and peace among the world. So now that's the time to independence of the new colonies. तो उस वक्त बहुत सारे नव आबादियात को जो है आज़ाद किया गया. तो उस नव आबादियात के तहत अमेरिका के बहुत से इलाके आज़ाद हुए. खास तौर से जो है इटली और जर्मनी के कब्जे में बहुत सारे कॉलोनीज थे, उनको आज़ाद किया गया. आज जैसे देखेंगे हमारा हिंदुस्तान नाउ प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंग्लैंड कंट्री, बट नॉट द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, फ्रैटर्निटी, बट नाउ सो टुडे हाउ the number of country to or different country organization, name of the Pakistan, name of the Bangladesh and name of the India. तो सो दैट्स टाइम नंबर ऑफ कॉलोनीज इंडिपेंडेंट. तो उस वक्त जब न्यू कॉलोनियलिज्म का जमाना था तो ऐसे बहुत से इलाके जो है वो आज़ाद हुए, और वो छोटे छोटे इलाके थे जो अपने कल्चरल बेस पर, लैंग्वेज बेस पर, और उसके अलावा संस्कृति के बेस पर, एजुकेशन के एतबार पर, फाइनेंस के एतबार पर अपनी एक पहचान रखते थे. तो इन तमाम पहचान के तहत बट नाउ अराइज ऑफ द endogenous native peoples among the world. So now this the native people today how the celebrate today how the days and give the wishes of the all depressed caste and the depressed people among the world the best of luck. Okay, thank you very much. Thanks Lord. Thank you, ma'am, for sharing such a valuable information regarding the World Indigenous Tribal Day. Now, I request Prof. Professor Afan sir to express the vote of thanks. Thank you, madam, for inviting me to present vote of thanks. First of all, I would like to thank Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College Principal S.C. Hale, Vice Principal Dr. Shakib Ahmed, Dean of Commerce Faculty Dr. Arif Anjum, Accuracy Coordinator Dr. Rizwan Hamdani, madam. I especially thanks today's keynote speaker Dr. Naseem Banu. She delivered a beautiful speech on World Indigenous Tribal Day. She explained in beautiful way on indigenous tribal people about their living way, about their identities in different areas. I also would like to thank program anchor Professor Momin Washira from the Department of Mathematics, Professor Fozia Madam from the Department of Chemistry, and all the participants of this program. Thank you, all of you. Thank you. Over to Washira Madam. Thank you, sir. The session is over.